Game Joe Future CAs, hope you are doing well. This is CA Devesh Arpani, your faculty for CA Final AFM. But that's not important. What is more important is today someone who we have with us, a very special guest, CA Ritij Saraf, All India Rank 2. First of all, heartiest congratulations, CA Ritij, and thanks a lot Thank for you. taking Thank you out so the much, sir. time. And I know I told you I'll not ask the cliche question, but एक क्विक cliche question पूछना तो बनता है because लोगों को जो फीलिंग है आपकी वो देखना बनता है. How do you feel right now? It feels surreal. It feels like I'm still living a dream. Like sitting in this interview, talking with multiple interviews, it still feels like a dream. It is all of these I had manifested, I had imagined कि हाँ मतलब अच्छा रैंक लाना है, टॉप थ्री लाना है, ये होएगा. So now that I'm really living it, I am still not able to process it. So it will take some time to sink in. And actually, this is exactly why I asked you this question because I think there is a massive power of manifestation, and it looks like you are also someone who manifested it and achieved it. So, guys, if you are watching this video, you have your attempt in number 26, May 27, you can also manifest it. And Ritesh, maybe let us start from there. You would not get a rank in Inter, and I know why you didn't get a rank in Inter. I'm parking that aside for now. I'll come back to that question. But होता ही है ना कि आई टॉक अबाउट माई सेल्फ फॉर एग्जाम्पल जब मेरे को इंटर में कॉन्फिडेंस नहीं था लेकिन जब इंटर का रैंक आया तब फाइनल के लिए कॉन्फिडेंस बढ़ गया एंड लेट्स से इन योर केस यू डिड नॉट हैव अ रैंक फॉर इंटर हाउ यू थिंकिंग अबाउट सीए फाइनल अगर किसी को सीए में चाहे इंटर में चाहे फाइनल में रैंक लाना है हाउ डूएबल डू यू थिंक गेटिंग अ रैंक इज क्योंकि लोगों को क्या लगता है ना रैंक इज अ फार थॉट ये तो होगा ही नहीं लाइफ में मेरे को भी ये लगता था ऑनेस्टली इंटर में कि अरे यार क्लियर हो जाए वही बड़ी बात है रैंक आ पाएगा कि नहीं आ पाएगा तो उस पे आपका क्या थॉट है शुड वन टारगेट अ रैंक कैन समवन गेट अ रैंक व्हाट डू यू थिंक I think definitely one should target a rank and it is 100% doable. So I believe in focusing on the process. Like rank is secondary. The first step is कि आप अपना जो भी core subjects है, you grasp it very well. You take knowledge, you consume knowledge when you are studying it for the first time. So after the first study, you are confident that yes ठीक है CA तो अब हो जाना चाहिए. So once you achieve that level of confidence, then you should start aiming for a rank and you should accordingly start studying, revise it continuously, focus on the process. And one thing that is very important is that you should know what your goal is, and if your goal is a rank, you should accordingly study and accordingly put in the efforts. वेरी फेयर Like आपका जो गोल है वही आपका एफर्ट्स भी होना चाहिए. You should be honest to yourself, and if you're honest to yourself, I think what you want to achieve, you will achieve that. नो 100% एंड आई से वन थिंग गाइस अगर आप टारगेट करोगे तो रैंक जरूर आएगा सो टारगेट करने से मत डरो बट अगर टारगेट करो इट शुड बी बैक्ड विथ योर एफर्ट्स जस्ट लाइक इट वाज इन द केस ऑफ रितेज एंड रितेज आई एम गोइंग टू कवर ईच एस्पेक्ट ऑफ योर सीए जर्नी लेट अस स्टार्ट विथ सीए इंटर योर यू आर फ्रॉम एसआरसीसी सो लेट्स स्टार्ट विथ देयर एंड देन वील कम टू सीए फाइनल May 26 एंड एएफएम आल्सो बट ये बताओ so, guys, by the way, the reason Ritesh did not get a rank in C Inter, while his marks were as good as a ranker, लेकिन रैंक इसलिए नहीं आया बिकॉज ही वॉज इन श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स इन दिल्ली यूनिवर्सिटी इन्होंने एक एक ग्रुप करके एग्जाम्स दिए थे इसीलिए रैंक इनको नहीं आया बट रितेश व्हाई डोंट यू शेयर अ फ्यू थॉट्स अबाउट हाउ वाज एसआरसीसी रेगुलर कॉलेज there's a lot of debate on सीए स्टूडेंट्स को रेगुलर कॉलेज में जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए डीयू में जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए बिकॉज ज्यादा टाइम लग जाता है सीए खत्म करने में and along with your regular college CA inter maybe we can start from there and then we come to horticulture. So, like this debate will always be there, but I believe that college experience is something which everyone should experience, even if it means 6 months or 12 months of delay in CA. Like in my case, like my family was also very supportive and they were like कि CA होते रहेगा, इतना हरी नहीं है, but college तो अच्छे से करना ही है. And I think it was the best decision I made. When I was taking that decision, I knew that I will be 1.5 years in delay as compared to my batchmates from school who were entering CA. So it was a tough pill to swallow, but at the same time I knew that it is worth it. And now I can say that yes, it was 100% worth it. I had a great college life. Initial 2 years of college life mein I was not at all thinking about CA. Like first 2 years I was completely in my co-curriculars in societies and enjoying my college life, growing there in different aspects of life. And in the third year, when the college duties were over, third year I started my CA preparation again. फाउंडेशन मेरा ऑलरेडी हो रखा था. सो सीए इंटरमीडिएट में
गेव 2-3 months एंड ग्रुप 1 दिया साथ साथ मैनेज करके, देन सिमिलरली ग्रुप 2 दिया, एंड May 23 में आई क्लियर्ड बोथ ग्रुप्स ऑफ सीए इंटर। बट उसके बाद एक मन में वो रिग्रेट हमेशा था कि यार आई हैव बीन अ स्टूडियो स्टूडेंट ऑलवेज, एंड मतलब वो सीए इंटर में आई रियलाइज्ड इट लेटर कि वो रैंक लाना कितना इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इट्स अ डिफरेंट ट्रीटमेंट दैट यू गेट, इट्स अ डिफरेंट attention that you get, different work experience that you get। like मेरे को initially I wanted to join Big Four, but Big Four मिलने में भी थोड़ा struggle हो रहा था, because वहाँ पर rank is a very important criteria, especially I am not aware of other cities, but I am from Kolkata, and Kolkata में rank is a very important criteria to get into a Big Four। तो उसमें भी इनिशियली काफी डिफिकल्टीज हुआ, तो वो एक फीलिंग हमेशा था कि यार ये जो डिसअपॉइंटमेंट है इसको कवर अप करना है इन सीए फाइनल। सो उसी दिन से था कि सीए फाइनल में आई आई वांट अ रैंक, एंड नॉट जस्ट एनी रैंक, आई वांट अ सिंगल डिजिट रैंक। तो वैसे ही पूरा प्रिपरेशन था वहां से। क्या बात है, पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन वंस अगेन। चलो उस पे आते हैं, लेट अस कम टू सीए फाइनल इन अ बिट। बट आपने बोला आप बिग फोर मिलने में दिक्कत था, बट फास्ट फॉरवर्ड फ्रॉम दैट एंड गाइस, आई हैव अ फ्यू फ्रेंड्स इन आईटीसी। मैंने सुना है ऋतिज का जो रोल था इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में, ही डिड हिज इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग फ्रॉम आईटीसी, उनका जो रोल था वो बहुत ही अच्छा रोल था इन द चेयरमैन्स ऑफिस। ऋतिज, व्हाई डोंट यू टॉक अबाउट इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग? क्या आपको करना चाहिए इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, नहीं करना चाहिए, उस पर बच्चों को गाइड कर सकते हो आप। आपको आईटीसी में कैसे मिला, कि आपका क्या एग्जैक्टली रोल था, एंड हाउ डू यू फील वो आपको क्या हेल्प किया, नहीं किया? आर यू रिग्रेटिंग? आई एम श्योर यू आर नॉट रिग्रेटिंग, बट एनी थॉट्स ऑन दैट? अभी तो सर नॉट रिग्रेटिंग, जब चल रहा था आर्टिकलशिप तब बहुत बार रिग्रेट होता था कि मतलब तब तक की पढ़ाई नहीं हो रहा था। लेकिन अभी Fair नाउ enough. एवरीथिंग हैज फॉलन इनटू प्लेस, तो आई विल नॉट से आई एम रिग्रेटिंग। कैसे मिला? सो टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरा प्लान नहीं था इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करने का। आई वांटेड कि 2 years में, बिकॉज ऐसे ही 3 years से 2 years हो गया आर्टिकलशिप। सो आई वाज कि 1 year में लर्निंग ज्यादा नहीं हो पाएगा अच्छे से, तो 2 years तो ऑडिट करना ही है। बट फर्स्ट ईयर ऑफ ऑडिट में लकीली आई गॉट अ ग्रेट एक्सपीरियंस वहाँ पे। आई वर्कड ऑन 3-4 क्लाइंट्स एंड काफी सारा ऑडिट्स किया। तो 3-4-5 months में ही एक जो फ्रेशर को एक्सपीरियंस चाहिए होता है वो मेरे को मिल गया था। एंड इन द सेकेंड हाफ ऑफ माई फर्स्ट ईयर आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू लीड एंड गेट रिस्पॉन्सिबिलिटी एरियाज। तो मेरे को फर्स्ट ईयर के बाद ऐसा फील हो रहा था कि हाँ मतलब आई हैव लर्नड इनफ ऑडिट में। एंड मेरे को उतना टू बी ऑनेस्ट मजा भी नहीं आ रहा था वो काम, थोड़ा मोनोटोनस लग रहा था। तो आई बहुत वॉन्टेड लोग टू रिलेट कर एक्सप्लोर पाएंगे इंडस्ट्रियल आपसे, ट्रेनिंग। बहुत लोग रिलेट कर पाएंगे यहाँ हाँ। पे आपसे। और सॉरी, गो अहेड। और प्लस 20-30% रीजन ये भी था कि मतलब इट वाज गेटिंग इतना ज्यादा वर्क प्रेशर इतना हाई था वहाँ पे, आई वाज नॉट गेटिंग टाइम फॉर माई स्टडीज। तो एक मन में बैक ऑफ द माइंड ये भी थॉट था कि इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में स्विच करते हैं, क्या पता थोड़ा सा टाइम और ज्यादा मिल जाए। दो हुआ नहीं उतना टू दैट एक्सटेंट, बट यही सब रीजंस था कि आई डिसाइडेड कि स्विच करना है। स्टार्टेड अप्लाइंग, एंड व्हेन आई गॉट दिस अपॉर्चुनिटी एट आईटीसी आई वाज नॉट एट ऑल अवेयर कि इट इज सच अ गुड रोल। मेरे को बस था कि इंडस्ट्री में जाके कुछ नया एक्सपीरियंस करना है, बस मेरे को उतना क्लैरिटी नहीं था कि मेरे को यही चाहिए या ये चाहिए। इट आई वाज वेरी लकी कि इट वाज द राइट टाइम द राइट प्लेस, कि आई वाज लुकिंग एट दैट टाइम, उस टाइम पे वहाँ पे वैकेंसी था। आई गॉट अ कॉल, लकीली एवरीथिंग हैपेंड, एवरीथिंग फेल इनटू प्लेस, एंड आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू वर्क देयर। सो आई एम रियली ग्रेटफुल। वहाँ पे भी जो मेरा लर्निंग्स रहे, लाइक द मैनेजर है वर्क अंडर, ही डायरेक्टली रिपोर्ट्स टू द चेयरमैन। सो हमारा जो भी काम होता था वो डायरेक्टली वाज रिपोर्टेड टू द चेयरमैन। सो इट फेल्ट कि हाँ मतलब आई एम एडिंग सम वैल्यू, वन रियल परसेंट 2% आई एम एडिंग सम वैल्यू एंड आई एम डूइंग सम मीनिंगफुल वर्क। तो इट वाज अ वेरी satisfying feeling there। No, no, very well deserved, I must say. And in fact, SRCC, which is regular college, articleship, industrial training at ITC, and an All India rank too. I mean, it is as good as it gets. But now, time to switch to what people want to hear the most. Your CA final journey, and maybe, and I'm putting a very broad question. You feel free to share whatever you want to. चाहे आप क्लासेस की बात करना चाहो, चाहे आप स्टडी लीव्स में आपका माइंडसेट क्या था। आई थिंक दिस इज वन एस्पेक्ट दैट आई रियली वांट यू टू फोकस ऑन, क्योंकि आप एक तरफ रैंक टारगेट कर रहे हो, एक तरफ आपको 8 महीने पढ़ाई करनी है, शायद लेक्चर्स इतने अच्छे से कंप्लीट नहीं हुए हो, इंडस्ट्रियल आर्टिकलशिप के साथ पढ़ाई नहीं हुई है। तो उस टाइम पे आप किस तरह हैंडल करते हो, येट कीप काम, ट्राई टू एम टू अ रैंक, वो आपने किस तरह किया? एंड ओवरऑल, maybe any low points of the CA journey that you want to share. Maybe just talk about your CA journey in brief up until the exams, especially the study leave period. So, sir, low points, तो there have been a lot of low points, lot of times where I have doubted myself a lot, because मैंने अपने आप पे बहुत ज्यादा प्रेशर क्रिएट कर दिया था रैंक का। तो समटाइम्स इट वाज वर्किंग इन अ नेगेटिव वे आल्सो, कि उस प्रेशर Hmm. के कारण पढ़ाई हो ही नहीं रहा था।
एंड इन द फर्स्ट ईयर ऑफ आर्टिकलशिप आई वाज सो मच इनटू वर्क 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 की स्टडी बहुत कॉम्प्रोमाइज Right. हुआ, एंड आई फेल्ट आफ्टर 1 ईयर कि आई डोंट डिजर्व अ रैंक ओनली बिकॉज मैंने अपने लिए जो गोल सेट किया मैंने अभी तक उसके लिए हार्डवर्क नहीं किया एज कम्पेयर टू जो मेरे पियर्स कर रहे हैं फॉर दैट गोल. सो फर्स्ट ईयर के बाद वो वाला फीलिंग बहुत था. तो वो 3-4 डेज काफी एक लो फेज था वेर आई वॉज डाउटिंग कि मेरे को ये टारगेट अपने लिए रखना भी चाहिए कि नहीं, इतना हाई एक्सपेक्टेशन रखना भी चाहिए कि नहीं. बट देन I suddenly a snap a switch happened and I was like कि अभी जो 1 ईयर ऑफ आर्टिकलशिप बचा है इसमें कंपेंसेट करना है, इसमें क्लासेस अच्छे से करना है. सो आई फर्स्ट ईयर में तो मेरा जीरो क्लासेस हुआ था. मैंने एफआर का ट्यूशंस ले रखा था बट आई डिड 10 और 11 क्लासेस मैक्सिमम. उसके बाद सेकेंड ईयर ऑफ आर्टिकलशिप में मैंने अपने लिए टारगेट सेट किया था कि एवरी क्वार्टर मेरे को एक एक सब्जेक्ट खत्म करना है. सो 4 सब्जेक्ट तो नहीं बट 3 सब्जेक्ट आई वॉज एबल टू कंप्लीट इन 1 ईयर, एफआर एएफएम एंड ऑडिट. एंड उसके बाद इनकम टैक्स एंड जीएसटी बचा था जो टुवर्ड्स दी एंड लेना होता है. सो एंड अगेन आई एम वेरी ग्रेटफुल कि हमारा 2 ईयर्स ऑफ आर्टिकलशिप है तो हमारा स्टडी लीव इज मिनिमम 6 मंथ्स. एंड मेरा जो टाइमिंग पड़ा उसके हिसाब से आई गॉट 8 मंथ्स. वो 8 मंथ्स में आप 1 मंथ असाइड कर दो आईटी एंड जो एमसीएस का ट्रेनिंग होता है, बट उसके बाद भी आई हैड फुल फ्लेजेड 7 मंथ्स. सो आई थिंक दैट वाज अ ग्रेट ग्रेट ब्लेसिंग कि भले ही फर्स्ट 2 ईयर्स में उतना पढ़ाई नहीं हो पाया बट वो जो 7 मंथ्स था इट इज मोर देन इनफ. लाइक पीपल हैव अचीव्ड रैंक इससे बहुत कम टाइम में भी. Right. सो आई थॉट कि अभी कोई क्रिप करके या रिग्रेट रख के फायदा नहीं है. अभी ये जो 7 मंथ्स है आई हैव टू मेक दी मोस्ट ऑफ इट. सो मेरा स्टडी लीव में अराउंड 5 मंथ्स मेरे पास बचा था फॉर रिविजन एंड मेरा क्लासेस वगैरह वर ऑल डन. लॉ एंड कॉस्ट थोड़ा बहुत देखना बाकी था, वो टुवर्ड्स दी एंड ही देखना था. तो वो 5 मंथ्स मैंने फुल फ्लेजेड रिविजन किया. एंड अगेन आई एम समवन जो मेरे को पता है मेरा क्या स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस है. सो माय वीकनेसेस की मैं लगातार 12-14 आवर्स कभी लाइफ में नहीं पढ़ा हूँ. मैं पढ़ ही नहीं सकता. मैं अगर 4-5 डेज वो कर लूंगा तो मेरे को बहुत बर्नआउट हो जाता है. सो आई Same. न्यू फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग कि मेरा इफेक्टिव स्टडी even in a best day is going to be 10 hours and in a worst day it's going to be 5-6 hours. So average 7-8 hours ही आना है दिन का. तो आई मेड अ प्रॉमिस टू माई सेल्फ कि स्टडी लीव में रादर देन बीइंग की अभी कम पढ़ाई करना है बाद में एकदम पुश करना, आई हैव टू बी थोड़ा सा और स्ट्रेट लाइन जाना है, बैलेंस्ड रहना है. तो मैं एग्जाम के 1 महीना पहले भी 8-9 आवर्स ही पढ़ रहा था, एग्जाम के 6 महीना पहले भी मैं 8-9 आवर्स ही पढ़ रहा था. मतलब इट वॉज जस्ट ड्यूरिंग द एग्जाम्स की वो काफी स्पाइक आया कि मैं 15-16 घंटा बैठा हूँ एग्जाम डे के दिन. Yes. बट उसके पहले मैं आई वॉज एबल टू बी मेंटली सेन बिकॉज आई थिंक दिस इज नॉट उतना टॉक्ड अबाउट बट the mental aspect of it is very very difficult and every CA aspirant goes through it whether he is aiming a rank or he is not aiming a rank. जो वो mental stress होता है, peer pressure होता है, it gets to you at some point. So मेरे को that really helped कि मैं 8-10 आवर्स ही पढ़ता था एंड मैं बाकी अपना टाइम enjoy करता था फ्रेंड्स के साथ. मेरे को स्पोर्ट्स पसंद है, मैं स्पोर्ट्स खेलता था, मूवीज देखता था. सो आई Uh, डिड नॉट कॉम्प्रोमाइज ऑन माई सोशल लाइफ टू अ लार्ज एक्सटेंट. थोड़ा सा कम हुआ बट आई डिड नॉट sacrifice it completely. So it helped me maintain my mental sanity. by the way, sorry, I'm smiling. I'll tell you why. So, someone got an All India rank 2 in, I think, JEE, if I'm not wrong. And he was very celebrated. I'm forgetting his name. This guy is a very cool guy, apparently. I've seen 1 or 2 interviews. Okay. I'm not sure how many CA students know the context here. This guy is a very cool guy, has interest in sports, etc. He has a bigger celebrity following as an AR2 rather than AR1 क्योंकि बंदा एकदम कूल है. ठीक है. आई एम गेटिंग दोज वाइब्स फ्रॉम यू कि बंदा सोशल लाइफ कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहा है, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग भी कर ली, पढ़ाई भी कर लिया, मूवी भी देखने जा रहा है. ये बंदा करता कैसे है? बाय द वे, उस AR2 को बहुत फीमेल फॉलोअरशिप मिलती है कि वो एकदम सब लोग उसके लिए उसके साथ सेल्फी लेने के पीछे भाग रहे हैं. कैन ओनली विजुअलाइज यू कि ऋतिक जा रहा है, सब लोग सेल्फी लेने आ रहे हैं. दैट्स ऑन अ वही. लाइटर नोट. But no, good stuff, great stuff, man. Being an all-rounder. But I can imagine, and guys, what Ritesh has said, and you need to read between the lines, कि उसने ये बोला है कि काफी बार वो जो रैंक का है प्रेशर आ जाता है, नेगेटिव भी वो चीज अफेक्ट होती है. एट दिस पॉइंट इन टाइम आपको मेंटली काम रहना, एंड जो रितेश ने बोला माइंडसेट, दैट इज सुपर इंपॉर्टेंट इन सीए एग्जाम्स. याद है मैंने आपको वन ऑफ द प्रीवियस वीडियोस आई हैव सेड दिस, that two things that set rankers apart from others, or in general those who clear CA versus not clear CA, is number one is time management. क्योंकि CA का कोर्स इतना बड़ा है, how do you manage time in your study leaves, in your articleship, in 1.5 days of exam, in the 3 hours of exam, how do you manage time, and also the mindset. And I think Ritesh is a classic example of how having a relatively positive mindset कि हाँ, नहीं हो रहा है 10-12 घंटे पढ़ाई, कोई दिक्कत नहीं है, 7-8 घंटे कंसिस्टेंटली करो तो भी हो जाएगा. एंड येट ही वाज टारगेटिंग AR 1 2 3.
पता चला आज कोई यार 1 2 3 टारगेट कर रहा है, वो ऐसा सोच रहा है यार मैं तो 14 घंटे पढ़ूंगा तो ही मेरा 1 2 3 आएगा, वरना नहीं आएगा। नहीं गाइज, ऐसा नहीं है, दैट इज अ मिथ। आई एम सो ग्लैड दैट रितेश हैज क्लियर दैट मिथ कि गाइज आपको 10 12 घंटे पढ़ना जरूरी नहीं है। हैविंग सेड दैट, इट रियली डिफर्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। ये मत सोचना कि अरे रितेश ने तो 7 8 घंटे में पढ़ लिया, मैं भी 7 8 घंटे पढ़ लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, मेरा रैंक 2 आ जाएगा। ऐसा भी नहीं होता है। इट टू ईच इट्स ओन। आपके हिसाब से जो बेस्ट है, डोंट बर्न आउट इज द लर्निंग। आपके हिसाब से अगर 10 घंटे पढ़ाई हो रही है, प्लीज डू इट। देर इज नो हार्म इन स्टडिंग मोर, बट वट एवर सूट्स यू बेस्ट, डोंट बर्न आउट, इज वॉट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। एंड लास्ट थिंग रितेश, अभी जो May 28 वाले होंगे ना, वो तो बहुत खुश होंगे ये वीडियो देख के, पता है क्यों? वो लोग बोलेंगे मेरे भी आर्टिकलशिप को 1 साल हो गया, मैंने भी एक भी लेक्चर नहीं किया, मैं यार तो लेकर आऊंगा। नो नो एब्सोल्युटली, बट थैंक्स फॉर शेयरिंग द ऑनेस्ट जर्नी। मेरे को ना 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, एंड इट इज इम्प्रॉम्प्टू, सो आई डोंट नो इफ यू विल हैव टॉप ऑफ माइंड आंसर्स फॉर दीज, बट दैट इज वेयर दिस इंटरव्यू गेट्स रियल। नंबर वन, or maybe I'll ask you the number one question, but I'll give you time to think, and I'll ask number two. Number one question is your CA journey in one word, and second question is luck or hard work. And it's not luck or hard work for you. In general, what do you think is more important? So, first question, if I have to describe CA journey in one word, it will be roller coaster. It has been a complete emotional roller coaster full of ups and downs. Like lot of days where I have doubted myself, I have doubted my decisions कि ये कर लेते तो ऐसा होता, ये सही नहीं है, ये करना चाहिए, and all those things. But ultimately, it's about staying in the present, focusing on the process, Absolutely. and not getting, as you said, not getting that expectation of a rank overpower the process. It is a byproduct of your process. So constantly trying to stick to the process mentally, that is something which has helped me. And your second question was Luck or hard work? luck or hard work. I believe hard work, because definitely there is an element of luck, no one can deny that. In some cases it is 10%, some cases it is 30%, but I believe that hard work is something which you can control, and आप Yes. जितना हार्ड वर्क करोगे उतना लक का परसेंटेज कम होते जाएगा. सो से इनिशियली इफ इट इज 50-50%, आप हार्ड वर्क करते जाओ करते जाओ करते जाओ, द लक का परसेंटेज विल कीप ऑन डिक्रीजिंग. सो लक इज समथिंग आई कैन नॉट कंट्रोल, सो आई डू नॉट थिंक अबाउट दैट. जस्ट डू दी हार्ड वर्क एंड रिड्यूस दी लक. नो आई फुली अग्री। अगर आप 40 मार्क पे हो तो आपको रिस्क लग रहा है कि एग्जामिनर मेरे को 39 हाँ, देगा कि 41 देगा। लेकिन अगर आप करेक्ट. 80 पे हो, या आप 70 पे हो, या आप 60 पे भी हो, तो वो रिस्क नहीं है ना। 10 मार्क चाहे कम दे दे तो भी 50 तो मेरे आ ही रहे हैं। मैं फुली अग्री, करेक्ट. बट यस लक इज इंपॉर्टेंट, लेकिन वो कंट्रोलेबल नहीं है, तो उसके बारे में सोच के मतलब नहीं है। लक है, इंपॉर्टेंट यस. है, फुल्ली अग्रीड, बट उसको छोड़ दो। आप सिर्फ हार्डवर्क पे फोकस करो, आपके बस में जो है आप उस पर फोकस करो। आई एम वेरी हैप्पी यू यूज द वर्ड रोलर कोस्टर। आई कैन फुल्ली रिलेट विद यू। इनफैक्ट आई विल टेल यू वन थिंग, ठीक है? आपको तो अभी अभी सीए क्लियर हो, मेरे को सीए क्लियर हो गए 5 साल हो गए हैं, इसलिए रियलाइजेशन हो गया है। उस टाइम पे भी था थोड़ा बहुत। रोलर कोस्टर में एक चीज है जो आपने नहीं बोली, वो है कि रोलर कोस्टर को आपको एंजॉय करना चाहिए। नो मैटर हाउ यस. स्केरी द रोलर कोस्टर इज, एंजॉय द राइड गाइस, बिकॉज ये दिन यस. वापस नहीं आएंगे। सीए बनने के बाद कहीं ना कहीं, लेट मी ब्रेक यू द मिथ। आप ना, अभी जो स्टूडेंट्स है ना, दे आर ट्राइंग टू ब्रेक अवे फ्रॉम द शैकल्स एंड दे थिंक सीए बन जाए एक बार, लाइफ सेट है। लाइफ सेट है, यस, नो नो डिनाइंग दैट, बट ये नहीं है कि उसके बाद लाइफ चिल है। काम फिर भी बहुत है, स्ट्रेस फिर भी बहुत है लाइफ में। तो कहीं ना कहीं आपको लगेगा इससे अच्छा तो मैं पढ़ रहा था, एटलीस्ट एक रूम में बैठ के आराम से पढ़ तो रहा था, कोई कुछ बोल तो नहीं रहा था मेरे को। बिकॉज एक बार एग्जाम्स खत्म हो जाती है, यू विल रियलाइज दैट CA is just a milestone in the journey of life, and life has much more to it than just the CA prefix. But anyways, that's for some other day. वो ठीक है, that is more about work experience. But I'm very glad. And now, guys, the most important question, Ritesh, that all of the guys who are watching this video are looking for to hear your thoughts on CA final May 26 exams. AFM in particular, but in general, as a package, one of the more difficult exams in recent times. Um, what is it that you think that helped you crack those tough exams is one thing, देखो पढ़ते सभी है, लेकिन what do you think has been the differentiating factor? And maybe overall you can answer, and especially for AFM, क्या चल रहा था आपके माइंड में जब आपने वो पेपर देखा? What do you think has helped you clear the exams? And I think you've got 68, which is pretty commendable in AFM. uh, what is the secret sauce? So, speaking overall first, very briefly, I feel
कि अभी जो पैटर्न हैज कंप्लीटली चेंज एंड इट इज नॉट जस्ट मे, इवन जैन 26, लाइक मे में एएफएम वाज एन आउटलायर, बट ओवरऑल जो बाकी पेपर्स थे, इवन जैन 26 पेपर्स वर सिमिलर टू दैट, लाइक आईसीआई इज ब्रेकिंग अ पैटर्न, लाइक यू कैनॉट एक्सपेक्ट कॉपी पेस्ट क्वेश्चंस एनीमोर। एब्सोल्युटली। इनिशियली लाइक मैं भी जब प्रिपेयर कर रहा था, द थॉट प्रोसेस वाज कि इवन इन अ टफ पेपर 40-50% तो पूरा कॉपी पेस्ट रहेगा बुक्स में, एंड इन एन इजी पेपर 70-80% रहेगा। बट नाउ that does not applies anymore. Now, very important is कि you do not search for shortcuts. You cover 100%. And most importantly, what I felt if I could do better if I had been given a time machine is कि uh, practice new questions. Like अभी तक जैसे एग्जाम्स में when new questions were coming, I was able to tackle them, but I was not feeling comfortable. एक कंफर्टेबल। नर्वसनेस हो रहा था, एक यस। डिस्कम्फर्ट फील हो रहा था, बट रेट्रोस्पेक्टिवली थिंकिंग वो डिस्कम्फर्ट नहीं फील होना चाहिए। आई एम प्रिपेयरिंग फॉर सीए, इट्स नॉट लाइक अ मगिंग अप पेपर, इट्स समथिंग एप्लीकेशन बेस्ड। सो आई शुड बी वेल equipped in my preparation कि even if a new question comes, I'm confidently able to tackle that. So I was able to tackle that, but not confidently, with a sense of discomfort. So I think we need to change the process of preparation, थोड़ा सा focusing more on 100% coverage, back to the traditional methods of learning. ABC analysis is तो I think completely redundant now, given the type of papers they are giving. You have to have clarity and you need to एब्सोल्युटली। practice new questions. Like you can prepare new questions from RTP, MTP, just practice new questions ताकि वो एक feeling of discomfort जाए. And talking about AFM in particular, so AFM was honestly a heartbreak for me because AFM was my favorite subject. It was a subject हम्म। where I was aiming for 100 कि because हम्म। in the past people have got it, तो मेरे को था कि this यस। is a subject जहाँ पर 100 out of 100 का एम रखना है, एंड पॉसिबल है आना, एंड करेक्ट। प्रिपरेशन भी बहुत अच्छा था उसमें। बट जब पेपर था तो आई वुड नॉट से कि एकदम आउट ऑफ सिलेबस पेपर था, पेपर वॉज वेरी वेरी डिफिकल्ट। वो मोमेंट में एकदम पैनिक में कुछ भी नहीं स्ट्राइक कर रहा था। लाइक टू गिव यू कॉन्टेक्स्ट, मैंने पेपर वापस सॉल्व किया था आफ्टर ऑल माई एग्जाम्स वर ओवर। मैंने घर में एकदम आराम से बैठ के रूम में 5-6 आवर्स लेके पेपर को एकदम आराम आराम से सॉल्व किया था, एंड आई वॉज एबल टू टैकल दैट टू अ ग्रेट एक्सटेंट। मतलब मेरे को बहुत बेटर फील हो रहा था कि नहीं, पेपर टफ तो बहुत था, बट टफर वॉज कि वो एग्जाम इन्वायरमेंट में बैठ के न्यू करेक्ट। क्वेश्चंस देखना, इट वॉज एब्सोल्युटली। ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू क्रैक। सो आई थिंक गोइंग फॉरवर्ड, अगर कोई नवंबर के लिए प्रिपेयर कर रहा है एंड ही नीड्स अ कंस्ट्रक्टिव फीडबैक कि क्या करना चाहिए, तो आई थिंक यू नीड टू प्रैक्टिस न्यू क्वेश्चंस ताकि वो डिस्कम्फर्ट फीलिंग जाए। फॉर समवन जिन्होंने बहुत नया क्वेश्चंस देख रखा था, जो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि सेम क्वेश्चंस आएगा तो ही मैं आंसर कर पाऊंगा, ही मस्ट हैव बीन एबल टू टैकल द पेपर मच मच बेटर देन मी। आई वाज नॉट प्रिपेयर्ड फॉर सच एन आउट ऑफ द बॉक्स पेपर। लकीली इट वाज माय स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट, सो आई वाज एबल टू गेट समथिंग, एंड मेरा रैंक नहीं खराब हुआ उसके कारण। हैड दिस पेपर बीन इन सम अदर सब्जेक्ट, प्रोबेबली मेरा रैंक खराब हो जाता। सो या आई वाज अ बिट डिसअपॉइंटेड। इवन मेरा एग्जाम डे के दिन भी आई थिंक व्हेन अ टफ पेपर कम्स, द बेस्ट एंड द सेफेस्ट स्ट्रेटेजी इज कि आप 100 मार्क्स या 95 मार्क्स पूरा अटेम्प्ट करके आओ। टेम्प आपको कर जो दो। आता है आप पैनिक किए बिना अपना कामली कुछ कुछ करके आओ, एंड प्रोबेबली जिन्होंने वो किया दे दे फेस्ड दे गॉट द रिवॉर्ड। मेरा वहां पर एग्जाम डे में थोड़ा सा पैनिक हो गया, आई वॉज नॉट एबल टू अटेम्प्ट पूरा 100 मार्क्स। मतलब आई हैड अ चॉइस कि इधर मैं पूरा 100 मार्क्स थोड़ा थोड़ा अटेम्प्ट करूं, और या फिर मैं 70-80 मार्क्स की अटेम्प्ट करूं, बट जो अच्छे कर से रहा हूं करो। उसमें पूरा अंदर तक घुस के एकदम टाइम लेके करूं कि ये तो राइट ही करना है। तो प्रोबेबली दैट वाज अ बैड स्ट्रेटेजी उस मोमेंट में। तो मैंने वो गलत स्ट्रेटेजी वो पैनिक में चूज कर लिया, सो आई वाज एबल टू अटेम्प्ट ओनली 80-85 मार्क्स। एंड थोड़ा सा ओह। रिग्रेट है उस चीज का कि मतलब प्रोबेबली 15 मार्क वो मिस आउट कर दिया उसमें। आईसीआई थोड़ा जेनरस था चेकिंग में, तो प्रोबेबली मेरे को कुछ मिल गया होता उसमें। मिल गया सो दैट होता। इज अ रिग्रेट कि वो एक लैप्स ऑफ जजमेंट था वो इन्वायरमेंट में। बट यस, दैट इज व्हाट आई हैव टू से अबाउट एएफएम। सो आपको कुछ 80-85 मार्क्स के 80-85%, 85% आए, विच इज 68 मार्क्स। सुपर, दैट इज एक्चुअली कमेंडेबल, रितेश। बट व्हाट आई एम टेकिंग अवे इज फॉर सीए स्टूडेंट्स, प्रिपरेशन स्टेज पे नो शॉर्टकट्स। एबीसी एनालिसिस थोड़ा बहुत आपको हेल्प कर सकता है, देयर इज नो हार्म डूइंग दैट, लेकिन गाइस न्यू क्वेश्चंस आर बीइंग आस्क्ड, पेपर पैटर्न इज चेंजिंग, तो छोड़ के मत जाओ यार कुछ भी। नो शॉर्टकट्स, डू 100%, लाइक ब्लैक शोल्स मत छोड़ के जाओ, शार्प ऑप्टिमल पोर्टफोलियो मत छोड़ के जाओ गाइस। एंड आई थिंक एग्जाम डे पे अगर टफ पेपर, फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सपेक्ट अ टफ पेपर, क्योंकि अब ट्रेंड थोड़ा सा चेंज हो रहा है। एंड अगर टफ पेपर आ गया, डोंट बी कॉट ऑफ गार्ड। लेकिन एंड हो सके तो पैनिक मत करो, ट्राई टू अटेम्प्ट 100 मार्क्स। बट द थर्ड लर्निंग इज, रितेश, हम लोग ना वो जो एएफएम में काफी जगह पे लिखा होता है परफेक्ट मार्केट कंडीशंस एग्जिस्ट, ये अजम्पशन है, ठीक है। तो हम ये अज्यूम करते हैं कि हमको पैनिक नहीं होना चाहिए ना टफ पेपर, ठीक है। यस, लेकिन वो पैनिक नेचुरल है गाइस। द वन लर्निंग नेचुरल। आल्सो इज कि एआई 2 को भी वो पैनिक हुआ था एग्जाम पेपर में। तो अगर आपके केस में
आज एएफएम टफ था, कल एफआर टफ हो सकता है, ऑडिट टफ हो सकता है, डीटी टफ हो सकता है। अगर कोई टफ पेपर आ रहा है और आप पैनिक हो रहे हो, तो ये याद रखना कि रितिज को भी पैनिक हुआ था, लेकिन रितिज को ऑल इंडिया रैंक 2 आया। तो आपको भी अगर पैनिक हो रहा है तो इट्स ओके, जस्ट ट्राई टू थिंक अबाउट दिस एंड देन ऑटोमेटिकली आप काम हो जाओगे एंड यू विल बी एबल टू अटेम्प्ट द फुल पेपर, 100% पेपर। बट indeed, kudos to you, Ritij, for that one, and really appreciate. And I think I am really liking this interview because in the last 20 minutes we've broken a lot of myths around CA, industrial training, articleship, studies, exams, ABC analysis, and so on and so forth. One last question is, um, how did you find out this channel? Did this channel help you in any way, either on your preparation or even post facto? And any words on that? Only if it helped. So I came across this channel for the first time when the exams were over. I was looking for suggested answers of AFM. I wanted to solve the paper again. So मैंने paper वापस solve किया था. Now I wanted to verify the answers. So I came across your video and you had very beautifully broken down all the answers and even given references कि ये study material में ऐसा similar concept यहाँ पर था. So मतलब it was feeling वैसा कि हाँ मतलब it is a very constructive video. So it made me feel good after watching that video कि हाँ मतलब ठीक है, paper was very very difficult. But going forward, for students who are aspiring to be mentally prepared for such a paper again, it was a very helpful video. So I shared it with all my juniors also कि पेपर Oh, बहुत टफ था, बट मे बी ये वापस ऐसा रिपीट हो सकता है, ICA इज अनप्रिडिक्टेबल, मे बी AFM में नहीं तो कोई और सब्जेक्ट में रिपीट हो हो सकता है. सकता है, सो यू correct. नीड टू बी मेंटली प्रिपेयर्ड. हमारे अटेम्प्ट में नो वन वाज प्रोबेबली मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर इट एंड दैट्स वाई वो और भी ज्यादा टफ लगा हम सबको. बट या आई फेल दैट वेरी द वीडियो वाज वेरी सूदिंग टू माई सोल. And one more thing, the approach that I have tried to take at least is, people keep cribbing, and rightly so. See, I'm not against people cribbing. यार अगर ऐसा पेपर टफ आएगा मेरे साथ भी, even I will feel bad. लेकिन यस. about the faculties also, lot of respect for all faculties. लेकिन अब अगर पेपर टफ आ गया है तो वो उस पे PhD करने से बेटर है. नाउ द क्वेश्चन इज, अगर फ्यूचर में टफ आता है तो हाउ डू यू क्या करना. handle that better? I've tried to be constructive. I don't know how relatable it has been to people, but at least that's the approach that I've tried to take. यस. But but once again, and maybe one last question I can ask: what next for CA Ritesh Saraf? सो राइट नाउ नॉट वेरी वेरी श्योर कि अभी क्या करना है आगे. इतना पता है कि मेरे को अभी 4-5 years एटलीस्ट जॉब करना है एंड देन आई वांट टू डू समथिंग ऑफ माय ओन ओनली, आइदर खुद का कुछ करना है या फिर मे बी जॉइन एन अर्ली स्टेज स्टार्टअप, ताकि Correct. वो फाइनेंशियल फ्रीडम जो ट्रू सेंस में चाहिए वो कुछ अपना ही करके वो फीलिंग अचीव होता है. सो Absolutely. लॉन्ग टर्म वो है. अभी इमिडिएटली नेक्स्ट में आई एम लुकिंग फॉर कंसल्टिंग एंड इन्वेस्टमेंट बैंकिंग. सो आइदर ऑफ दीज टू, जो भी वैकेंसीज रहेगी विल अप्लाई एंड लेट्स सी, लेट्स होप फॉर द बेस्ट. No, no, absolutely. And I'm sure you'll do wonders. All the very best for that. If there's anywhere I can help, feel free to reach out. You can feel free to reach out. So absolutely don't worry about that. And मेरा साइड से एक अनसॉलिसिटेड एडवाइस, अभी एक हफ्ता तो बस चिल मारो. जॉब वॉब का सोचो ही मत, बस सीवी बना के छोड़ दो. दिस इज द टाइम ऑफ योर लाइफ. यू वर्कड हार्ड फॉर द लास्ट 6 years फॉर दिस. You deserve at least 6 days of unhindered Yes. peace and enjoyment and celebration. So once again, heartiest congratulations, Ritij. And guys, if you like this video, do put a thumbs up to this video. And if there's any comments that you have, feel free to put on the comment box. Once again, wishing C. Ritij all the very best. And guys, do subscribe to this channel. We are going to get more such videos. Thanks a lot. Thanks, Ritij. See you. Bye bye. Thank you. Thank you so much.